Hi guys, I'm Ashna and welcome back to my channel and welcome to another fun video. Personally मुझे कुछ अच्छी क्वालिटी की या फिर महंगी चीज लेनी होती है वन आई ईदर वॉक इन एट द स्टोर या फिर अगर मुझे ऑनलाइन खरीदना होता है तो नंबर वन प्लेटफॉर्म आई शॉप फ्रॉम द मोस्ट इज मिंत्रा। और मिंत्रा की ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि हर प्राइस रेंज की चीजें अवेलेबल होती है। इफ यू वांट समथिंग अल्ट्रा अफोर्डेबल, प्रीमियम लग्जरी, इवन लग्जरी इज ऑल्सो अवेलेबल एट मिंत्रा। सो आई रिसेंटली बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड कुछ चीजें पुरानी भी है जो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, आपने काफी बार देखा भी होगा। सो आई एम गोना डू मिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. Okay, let's start with the first category, which is tops. So recently I bought this shirt from H&M. It actually looks like a jacket when you wear it. और personally मैं बताऊँ मेरा favorite season styling wise is autumn because I love layering. लेकिन गर्मी में आप layer कैसे करोगे? But इसका fabric is very light, very breathable. तो summers में आप ऐसे shirts को use करके layer कर सकते हो. Especially when you are traveling, you can wear shorts like this. ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होंगे, but they will still keep you थोड़ा सा warm and cozy. Also ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था, so I was not really sure about the color because I've never tried anything olive before. But when I tried it on, I was like कि मैंने ये कलर पहले क्यों नहीं ट्राई करा because it looks beautiful. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा and the way it looks like a jacket, it just makes it much more better. It has a collar and a lot of buttons in the front, तो आप पूरा open करके भी पहन सकते हो और you can fully close it or half close it and अंदर कुछ tank top layer कर सकते हो. And I absolutely love the sleeve. I love me a nice poofy balloon sleeve and इसके एकदम बड़े बड़े size के poofy sleeve हैं. And इसका size जो है ना already pre oversize है. इसमें मैंने size small लिया था but it comes quite big on me. तो अगर आप order करोगे ना तो उसी हिसाब से order करना. So I got the size small and I bought it for 2299 rupees. Okay, next top is again a shirt and every time I wear this I get so many compliments. So it is this white shirt with a lot of unique prints. Personally I'm not a big print person, especially अगर इतने चटाक colorful print हो तो मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ. But somehow with this shirt, with the style of the shirt, it just works perfectly. And काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे shirt में अच्छी लगती है. I love this collar. ये collar थोड़े से और ज़्यादा लंबे और थोड़े से और extra pointy है, so I really like it. And यहाँ पर भी print है. And the sleeves are balloon sleeve, but it's just थोड़ा सा different. If you want to look like very put together without actually putting a lot of efforts, then get this shirt because इसे पहन के ऐसा लगता है कि आपने ready होने में पता नहीं कितने ही efforts डालोगे, but in reality you are just wearing a shirt and jeans. So इसमें मैंने लिया है size small और बहुत perfectly मुझे fit होता है, एकदम perfect relax fit होता है ना, वैसा इसका fitting आता है. So I really like it. Most of the prices जो भी मैं इस haul में दिखाने वाली हूँ, सबके price जितने में मैंने खरीदा था ना उससे और discounted price पे available है अभी. Okay, next I have again a shirt. I'm a big shirt person. Actually all of the tops, बस एक टॉप है बाकी सारे शर्ट है. एक्चुअली ये शर्ट मुझे काफी टाइम से लेना था. आई हैड समथिंग सिमिलर बट इस बार जो मैंने अपग्रेड किया है वो है द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक. आई हैव अ पॉलिएस्टर वाइट शर्ट, सिंपल वाइट शर्ट, बट आई डोंट हैव एनी लिनन शर्ट. द मोर आई एम ग्रोइंग ओल्डर आई एम रियली प्रायोरिटाइजिंग द फैब्रिक क्वालिटी दीज डेज. सो आई गॉट अ वाइट लिनन शर्ट. बेसिकली इट्स अपग्रेड फ्रॉम अ पॉलिएस्टर शर्ट and linen is one of the most premium fabric you can get. And white shirt is very versatile. You can dress up, you can dress down. इतने सारे तरीके हैं. आप casual wear में use कर सकते हो, आप formal wear में use कर सकते हो. The options are endless. So इसमें मैंने size up करा है because I wanted थोड़ा सा more relaxed to oversize fit. So I got a size medium. If you're looking for a good quality linen shirt, get this one. बहुत अच्छी quality है इसकी. Okay, next I have another shirt and this is also from H&M and it is this powder blue शॉर्ट. आई फील लाइक कैमरा पे थोड़ा सा वाइब्रेंट दिख रहा है कलर, बट इतना वाइब्रेंट नहीं है सामने. इट्स लाइक वेरी नाइस सटल पाउडर ब्लू कलर एंड पास से भी आप देखोगे ना यू कैन टेल द फैब्रिक क्वालिटी इज रियली गुड एंड इट इज 100% कॉटन. आई वांटेड टू ऐड अ कॉटन ब्लू शर्ट इन माय वार्डरोब बिकॉज ब्लू शर्ट ना लेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. इफ यू वेयर अ ब्लेजर और जैकेट ऑन टॉप it looks really good. I haven't got a chance to style it yet, but I'm sure ये मैं कुछ ना कुछ करके बढ़िया सा स्टाइल कर ही लूँगी. So extra small size and currently it is available for 1499 rupees. Okay, now the very last top which is actually a top is this black bodysuit. Front में we have this square neck and पीछे भी square ही है but it's deeper than the front. It's deep enough कि पीछे back में ना it almost gives the illusion of backless. थोड़ा सा sexy भी लगता है but it does cover
body of brass straps, so I really like it. And front में bust वाला जो area है ना, it is double lined, so you can wear your pasties और उसका जो line है वो नहीं visible होगा. Usually ऐसा कुछ body hugging और stretchable होता है, so I prefer कि मैं उसमें size down करूँ, extra small लेती हूँ मैं. But this one I was not really sure about the size chart, so I bought size small and it fits me perfectly. ऐसा लग रहा है कि ये मेरे body के लिए ही बना है. Every single place it just sits perfectly on the bust, on the waist, on my arms. Also ये full sleeve top जो ऐसे एकदम body hugging होते हैं ना, उसमें एक चीज मुझे हमेशा बॉदर करती है, हर जगह से बहुत अच्छे से फिट होता है लेकिन यहाँ से ना बहुत एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे अलग से लटकता है, वो मुझे बहुत ज्यादा गंदा लगता है. लेकिन इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. इट जस्ट फिट्स मी लाइक अ ग्लव, सो आई रियली लाइक इट. एंड द फैब्रिक इज very soft. I don't know क्या fabric है ये, but बहुत ज़्यादा soft है. So this one I got in size small and I bought it for 2299 rupees. Okay, next I have a top wear, but it is not a top. It's like a outerwear, which is this black blazer. I don't have black blazer in my wardrobe. I have been looking for a very long time, but मुझे अच्छी quality का चाहिए था जिसमें shoulder pad हो. And the fabric, कुछ blazers जो बहुत ज़्यादा light होते हैं ना, उनका fabric बहुत अजीब होता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. So I wanted a good quality fabric in blazer. ऐसे देखोगे तो it looks like a basic blazer, but it has shoulder pads, the sleeves are long enough. But एक बहुत interesting चीज जो मुझे इस blazer में लगी, that it has a corset in the back, so you can adjust around the waist और ऐसे hourglass वाला shape हो जाएगा एकदम. I've never seen a blazer like this before, so I was like चलो try करके देख लेते हैं. but ये काफी expensive भी था, so I was like कि पता नहीं कैसा आएगा, but ये बहुत ज्यादा अच्छा आया है. You can also see the try on, it looks really good. अगर normally relax fit में पहनना है तो पीछे वाला कॉर्सेट टाइट मत करो, बट अगर आपको थोड़ा सा ड्रेस अप करना है, थोड़ा सा आर्ट ग्लास बाडी आडी आडी चाहिए, तो पीछे से कॉर्सेट टाइट कर लेना, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. इट्स नॉट दोज फ्लिम्जी ब्लेजर्स का क्वालिटी जो एकदम पतले पतले से होते हैं ना, कहीं भी ऐसे करो मुड़ जाते हैं. इट हैज अ लॉट ऑफ वेट एंड स्ट्रक्चर, एंड इनसाइड इट ऑल्सो हैज अ लाइनिंग, सो that's a plus point. तो ये blazer मैंने लिया है in size small, and when I bought it, it was for 4399 rupees, but अभी discounted price पे है for 3959 rupees. Okay, we are done with all the tops. Now the next category is dresses. So I'm gonna start with what I am wearing right now. So I'm wearing this brown color ka plaid checkered dress. I love everything about this dress. The color combination, the style of this dress, the fabric also. It is a cotton dress, so I really like it. वैसे overall देखोगे तो the structure of this dress is very simple, but the print, the color combination, and especially these poofy sleeves, बहुत क्यूट लगती है ड्रेस. ये भी ड्रेस मैं बहुत बार ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, एंड आई डू गेट आस्क्ड कि कहाँ से लिया है. बहुत बार मेरे पास कमेंट भी आते हैं. जितने में मैंने ये ड्रेस ली है ना, द स्टाइल, द ओवरऑल लुक लुक्स मच मोर एक्सपेंसिव. इट डज लुक लाइक समथिंग राल्फ लॉरेन वुड सेल, या फिर बर्बरी, या फिर और कोई लग्जरी ब्रांड वुड सेल. ऑल्सो द फैब्रिक इज 100% कॉटन, सो द क्वालिटी लुक्स मच मोर प्रीमियम इन पर्सन एज वेल. आई डोंट रिमेंबर मैंने पहले एक्स्ट्रा स्मॉल लिया था या फिर मैंने एक्सचेंज करके एक्स्ट्रा स्मॉल लिया, बट लास्ट में मेरे पास दिस इज extra small size. Overall fitting हर जगह से it was perfect, but मुझे एक जगह पे काफी लूज आया था, which was this under bust के यहाँ पे एक इलास्टिक है, so it was little loose. So मैंने सोचा अब extra small से तो छोटा साइज इनके पास अवेलेबल है ही नहीं, so I ऑल्टर्ड दिस. खुद से थोड़ा मैंने सुई धागे से यहाँ से टाइट कर लिया, और यहाँ की फिटिंग टाइट करते ही जो पूरा लुक आया है ड्रेस का, इट लुक्स सो नाइस एंड फिट्स मी सो मच बेटर. अपार्ट फ्रॉम दिस इलास्टिक का थोड़ा सा मुझे जो टाइट करना पड़ा था, उसके अलावा ओवरऑल क्वालिटी, द डिजाइन, द स्टाइल ऑफ दिस ड्रेस इज 10 on 10 फॉर मी, एंड विदाउट अ डाउट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसेस आई ओन. मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है. सो इसमें मैंने लिया है साइज XXS. करंटली इट इज अवेलेबल फॉर 3035 रुपीज. ओके, next dress is again one of my most complimented dress. I think इस ड्रेस के लिए मुझे आज तक जितने कॉम्प्लीमेंट मिले हैं ना, मुझे किसी टॉप किसी भी चीज के लिए नहीं मिले. इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं. सो इट इज दिस केप ड्रेस. सो ये ड्रेस मैंने अपने बर्थडे डिनर के लिए पहनी थी, एंड माई DMs flooded with प्लीज शेयर द लिंक, सेंड लिंक, कहाँ से लिया है ड्रेस, प्लीज प्लीज प्लीज. इसका जो स्टाइल और जो पैटर्न है ना, इट मेक्स इट लुक लाइक अ मेन कैरेक्टर ड्रेस. You know what I mean? So this is the front. यहाँ पर एक slit है. The slit was actually very long. यहाँ तक था,
यहाँ मैंने एक छोटा सा स्टिच लगा रखा है सो दैट इट डजंट कम वेरी डीप ऑन मी। वैसे ये ड्रेस इज कट स्लीव बट इसके ऊपर ऐसे मैं इसे दिखा नहीं पाऊंगी, आप ट्राई ऑन देखो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट इट लुक्स वेरी प्रिटी। इट हैज़ अ जिप इन द साइड, सो पहनने उतारने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड वन थिंग आई रियली लाइक इज दिस वेस्ट वाला पार्ट। इट हैज़ दिस वाइड बेल्ट विच इज ऑलमोस्ट लाइक रूज, यहाँ से एकदम फिट हो जाता है। ऊपर से इट हैज़ अ केप एंड नीचे से इट हैज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स, सो इट गिव्स यू दैट hourglass body. This is again hands down one of the best dresses I own. ये और ये both of these dresses are in my top 5 for sure. This dress I got in size extra small, fits me perfectly and I got this for 2,999 rupees. Okay, next one is again my birthday dress. वो मैंने एक दिन पहले डिनर के लिए पहना था and on my main birthday I wore this dress. Scroll करते करते मिंत्रा पे मुझे ये ड्रेस दिख गई and पिक्चर देख के तो लग रहा था कि ये इस प्राइस रेंज में ये ड्रेस मिल रही है तो आई हाईली डाउट कि ये ऐसे ही आएगी, बट जैसा पिक्चर में दिखाया है कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली वैसी ही ड्रेस मेरे पास आई है। जैसे मैंने मेंशन करा बॉडी हगिंग में आई प्रेफर टू गो फॉर साइज एक्स्ट्रा स्मॉल, बट इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन मुझे ये ड्रेस देखते ही इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि आई वाज लाइक कोई बात नहीं, थोड़ा लूज भी आएगा तो मैं ऑल्टर करा लूंगी। सो ये ड्रेस के साथ ऐसा ही हुआ था। सो दिस ड्रेस हैज़ अ वेरी प्रिटी बेबी ब्लू लेस ऑल ओवर द ड्रेस एंड अंदर ये न्यूड कलर की लाइनिंग है, इसकी वजह से आई डोंट नो दिस ड्रेस लुक्स वेरी क्यूट एंड वेरी यूनिक। इट हैज़ अ स्वीट हार्ट नेकलाइन इन द फ्रंट एंड फ्रिल स्लीव्स। बहुत ज़्यादा क्यूट ड्रेस है, आपने देखा ही होगा मेरे बर्थडे पोस्ट में, मेरे पिक्चर्स में, वीडियोस में। दिस ड्रेस इज़ वेरी क्यूट। सो अगर मैं इसको रिवर्स करूँ और अंदर आप देखोगे सो आई ऑल्टर्ड इट। इसे मैंने खुद ही सिलाई करके थोड़ा सा टाइट करा था। नाउ इट फिट्स मी परफेक्टली, बट जब आया था तो काफ़ी लूज था मुझे। सो अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल हो तो अनफॉर्चुनेटली आपको ये ऑल्टर कराना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक वर्ड में मुझे इस ड्रेस को डिस्क्राइब करना पड़े ना, आई वुड से whimsical. आई फेल्ट लाइक अ फेरी, आई फेल्ट लाइक अ डिज्नी प्रिंसेस व्हेन आई वोर दिस ऑन माई बर्थडे। बहुत क्यूट ड्रेस है। इट वॉज अ परफेक्ट बर्थडे ड्रेस फॉर मी। सो एज आई मेंशन आई गॉट दिस इन साइज स्मॉल बट आई गॉट इट ऑल्टर्ड। जब मैंने लिया था इट वॉज फॉर 2400 बट करेंटली ये 2100 की अवेलेबल है ड्रेस। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर क्यूट ड्रेस फॉर योर बर्थडे और मे बी फॉर वेकेशन यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। बहुत ज़्यादा क्यूट ड्रेस है। ओके, वी आर डन विद ऑल द ड्रेसेस। बिफोर मूविंग टू बॉटम्स एंड अदर कैटेगरी आई वॉन्ट टू शो यू गाइज सम इंटीमेट वेयर। बेसिकली ब्रास के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं कि आप क्या पहनते हो अंदर, बिकॉज समटाइम्स आई एम वेयरिंग बैकलेस, स्लीवलेस, ऑफ शोल्डर। आई एम गोना शो अ ब्रा विच आई रिसेंटली बॉट एंड आई एब्सोल्युटली love it. I don't have a lot going on in the bust area and if you are also part of itty bitty titty community तो आपको पता ही होगा कि ऑफ शोल्डर ब्रा के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये होती है कि बहुत जल्दी नीचे से स्लिप डाउन हो जाती है बिकॉज there's not much going on in the top area for a better grip. So I found this bra and this is such a good bra. So एक तो इसका कलर, एक तो कलर देखो। यूजुअली हमें न्यूड ब्राज होती है ना, वो एकदम वाइट, ऑलमोस्ट लाइक अ वाइट कलर की ब्रा मिलती है, बट इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा है। द ब्रा इज वेरी लाइटली पैडेड, इट्स लाइक अ परफेक्ट अमाउंट ऑफ पैड। मुझे बहुत ज्यादा थिन पैड्स भी नहीं पसंद है बिकॉज उसमें फिर निपल्स दिखते हैं, या फिर बहुत ज्यादा थिक भी नहीं पसंद है। आई लाइक दिस क्वालिटी ऑफ पैड एंड इट हैज अंडर वायर एंड ऑल्सो हिडन स्ट्रैप अटैचमेंट। यहाँ पर आप स्ट्रैप्स लगा सकते हो, अभी मैंने निकाल रखा है। वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस ब्रा इज इसके स्ट्रैप्स के अंदर देयर इज दिस इलास्टिक। इसकी वजह से बिल्कुल इधर का उधर ये बिल्कुल भी नहीं होता है, जहां आप पहनोगे वहीं का वहीं रहेगा। सो इसमें बहुत अच्छा ग्रिप है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। इट गिव्स यू पुश विदाउट बीइंग टू मच। तो ये ब्रा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली फॉर द कलर। इसके ऊपर आप शेयर कुछ भी पहन लो, वाइट पहन लो, न्यूड पहन लो। आई वोर दिस कॉर्सेट और इसके अंदर मैंने ये पहना था। उसमें अगर आप दूर से देखोगे ना ऐसा लगेगा मैंने कुछ अंदर पहना ही नहीं है, बट वो कॉर्सेट एकदम सी थ्रू था तो अंदर तो कुछ पहनना था मुझे। सो आई वोर दिस वन। अगर इसकी जगह में वो जो ऑलमोस्ट वाइट न्यूड कलर आता है ना, वो अलग से दिखती ब्रा, इसके अंदर बिल्कुल भी पता ही नहीं लग रहा था। सो दिस वन इज रियली गुड। ये मैंने मिंत्रा से लिया था, बट मैं चेक कर रही थी तो मिंत्रा पे बहुत सारे साइजेस अवेलेबल नहीं है। सो आई थिंक अगर अमेजोन पे अवेलेबल होगा तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी। ओके, इसके अलावा दिस नेक्स्ट वन इज काइंड ऑफ अ स्प्लर्ज। तो मैंने ली है 2 कैल्विन क्लाइन की ब्रा एंड इफ यू नो एनीथिंग अबाउट CK, देयर ब्राज आर बिट एक्सपेंसिव। आई टेल यू व्हाई आई बॉट कैल्विन क्लाइन ब्रा।
one, they look very sexy, they are very comfortable. How I know they are comfortable? Because I used to have, जो मैंने recently इन्हें खरीदने के बाद discard करा है, I bought I think that bra in 2021. वो मैंने 2021 से लेकर अभी 2026 तक मैं वो उसे पहनती रहती। मैंने शर्म करके डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज उसकी हालत लाइक वो ऐसा मैंने लिया था बट उसका कलर अब ऐसा हो गया था इतना वॉश होने के बाद। बट द पैड क्वालिटी वाज सो गुड, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था, बल्कि मैं तो मशीन में डाल देती हूँ और मशीन में तो कैसे भी वॉश हो जाता है ना, बट उसमें बिल्कुल भी पैड्स ख़राब नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल थी और उससे तो मैंने इतना पहना। तो आई रियली ट्रस्ट दिस ब्रांड। दे आर बिट एक्सपेंसिव आई वुड से फॉर अ ब्रा, बट दे आर गोइंग टू लास्ट यू फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। सो दीज ब्रा आर फॉर 3500 रुपीज़ ईच। यस, जब मैंने 2021 में लिया था ना, आई थिंक तब मैंने 2100 या 2200 कुछ का लिया था। नाउ दे आर बिट एक्सपेंसिव, बट ठीक है यार, अगर मैं इतने टाइम तक यूज़ कर पाऊँगी और मैं जिम तो रोज़ जाती हूँ, सो एवरी सिंगल डे आई वेयर ब्रास लाइक दिस। टी शर्ट्स के अंदर ट्रैवल करने के लिए दे आर परफेक्ट, सो आई डोंट माइंड इन्वेस्टमेंट ही है मेरे लिए तो पर्सनली, सो आई डोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन ब्रास लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव बॉटम्स। और बॉटम्स में जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा पहनती हूँ दैट इज़ जीन्स, विच आई वेयर 95% ऑफ द टाइम। फॉर रेफरेंस, आई एम 5'7" एंड इफ़ यू आर ऑल्सो सिमिलर हाइट टू मी और टॉलर देन मी, तो आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है हमें बॉटम वेयर में अच्छी लेंथ के लिए। सो ये जो जीन्स है ना, आई ट्राइड एंड टेस्ट अ लॉट ऑफ जीन्स एंड दीज आर द जीन्स दैट फिट्स मी रियली वेल। वेस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है एंड लेंथ वाइज तो बहुत अच्छी फिट होती है। मोस्ट ऑफ द जीन्स दैट आई हैव इन माई वार्डरोब जो मुझे लेंथ वाइज अच्छे से फिट आती हैं, दे आर ईदर ब्लैक या फिर एकदम डार्क नेवी ब्लू। आई डोंट हैव दिस लाइट ब्लू कलर इन माई वार्डरोब। और इसकी क्वालिटी देखो आप पास से, ठीक है। सम डेनिम्स आर वेरी थिन, वेरी लाइट, वो वाली क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। मुझे ये वाली क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लेवाइस क्वालिटी। ट्रेंडी ऑल का ना मैं एक चीज़ बोलूँगी, जीन्स की लेंथ आर रियली गुड। दे मेक जीन्स फॉर शॉर्ट गर्लीज, टॉल गर्लीज, ऑल काइंड ऑफ गर्लीज, बट इनका ना साइज चार्ट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। मुझे हर बार मुझे साइज़ एक्सचेंज कराना ही पड़ता है एक ना एक बार तो। सो दिस वन आई थिंक इसमें मैंने 27 लिया था पहले, बट देन वो बहुत ज़्यादा लूज था तो मैंने उसमें साइज़ एक्सचेंज कराया। दिस इज़ 26 डज नॉट इवन फिट मी बट दिस फिट्स मी, सो आई एम रियली नॉट श्योर इफ इट्स 26 और नॉट। तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है इस ब्रांड के साथ, बट द क्वालिटी एंड लेंथ इज़ वेरी मच जस्टिफाइड द स्ट्रगल, सो आई डोंट माइंड। तो जब मैंने लिया था ना, आई गॉट दिस जीन्स फॉर 2699, but right now it is available for 2384 rupees, so discounted price में available है। ये jeans मैंने recently add करी अपने wardrobe पे and I tried a new brand for jeans which is Mango. The quality of this denim is वेरी प्रीमियम लुकिंग। डार्क ब्लू में ना ये टैन से कलर का धागा यूज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई रियली लाइक द कलर, द स्टाइल। बेल बॉटम जीन्स में ना कुछ जीन्स होती है जो ऊपर से एकदम फिटेड होती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एंड नीचे से बहुत ज़्यादा फ्लेयर हो जाती है। वो बहुत मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक इट। आई लाइक बूट कट जीन्स जो ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट जीन्स। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा है। आप ट्राई ऑन देख लेना ये जो फिटिंग है ना, आई लाइक दिस काइंड ऑफ फिटिंग एंड आई एम रियली इम्प्रेस विद दिस जीन्स बिकॉज दिस इज वेरी लॉन्ग। मुझे पर्सनली थोड़ी सी लंबी ही चाहिए थी बिकॉज वेन एवर आई वेयर अ बूट कट जीन्स तो उसके साथ मैं हील्स ही पेयर करती हूँ, उसी के साथ मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है लुक। सो दिस जीन्स फ्रॉम मैंगो आई गॉट इन साइज 28 विच इज माई परफेक्ट साइज और एकदम ट्रू टू साइज है इनका साइज चार्ट विच इज रियली गुड एंड दिस वन इज फॉर 2194 रुपीज विच इज अ वेरी गुड प्राइस, ट्रस्ट मी। ये सेम क्वालिटी की जीन्स, ये सेम क्वालिटी का डेनिम आप अगर लेवाइस में लेने जाओगे ना, आपको 8-10 हज़ार से नीचे की नहीं मिलेगी। द क्वालिटी इज दैट गुड। I think we are done with bottoms. Now the next category is accessories. उसमें थोड़े से it's a mix of a lot of things. Let's start with a few bags. So this is the first one. This one is from H&M. All of my bags are either tote bag या सिर्फ shoulder bags ही है। ऐसा छोटू सा हाथ में पकड़ने के लिए नहीं था मेरे पास। This is what it looks like from close up. I really love the suede finishing. यहाँ पर जो stitching भी दे रखी है ना, this I really like and the metal detailing I really love it. It has a strap but मुझे strap तो use नहीं करना है। I use it like this only. So it looks very cute. छोटू सा है, cute सा है. It goes really well with a lot of outfits as well. Okay, this next one, I have been looking for a bag like this from a very long time, but मुझे ना सस्ता और cheap quality दिखने वाला नहीं लेना था. So it is a clutch. It is a simple clutch. It opens like this.
यहाँ पे मैग्नेट है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। ऐसे बैग्स ना बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, आप वेस्टर्न वेयर के साथ पहन सकते हो, ड्रेसेस के साथ पहन सकते हो, जीन्स टी शर्ट के साथ पहन सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज़ इट ऑन योर एथनिक वेयर, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली साड़ी में तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। दिस वन मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था एंड यहाँ पर थोड़ा अटैचमेंट भी है, इट ऑल्सो हैज़ अ चेन इन साइड। येस, इट कम्स विद अ चेन सो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ क्रॉस बॉडी या फिर शोल्डर बैग। बहुत क्यूट है, बहुत सिंपल है, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। जब मैंने लिया था ना तब इसमें कॉल इट स्प्रिंग, बट जब आया सो इट ऑल्सो हैज़ अ एल्डो का टैग, सो आई एम रियली कंफ्यूज मिंत्रा पे क्यों नहीं मेंशन था। आई एम नॉट रियली श्योर इफ इट्स फ्रॉम मिंत्रा मतलब एल्डो और नॉट, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। सो दिस वन आई got for almost 8,000 rupees. Personally, I don't care Aldo का हो या कहीं का भी हो, I more look for the design and the detailing. And ये जो ऐसे ये रूशिंग वाली detailing है ना, ये I really like. Although it is made from PU leather, artificial leather है, but the quality looks very premium. बहुत high quality का लग रहा है the way it's made. It looks very good and personally I know I'm gonna use it a lot. Now the next one is actually this watch जो मैंने कुछ months पहले लिया था and उसके बाद से तो I've been using it non-stop. For this watch I get asked के कहाँ से लिया है, please share कर दो link, but the thing is ये मैंने store पे जाके लिया था, so it's not really available online. I tried checking it but ये सिर्फ store पे available है I think. What I can recommend you is something very similar. So this is a Fossil watch which I got last year I think around my birthday. अगर आप दोनों watches को साथ में रख के compare करोगे ना, the only major difference these watches have is the dial size. ये थोड़ा rectangular है but Tommy one is completely square. If you don't mind ये थोड़ा सा dial का size, then you can also go with this Fossil one also. ये भी 13,000 something की है, ये भी मतलब 13-14 के बीच का ही price range है दोनों का ही। And this watch is also available in full gold color. अगर आपको पूरा gold चाहिए तो I'll link it below, you can check it out. Now next I have some footwear. Let's start with this Charles and Keith bag. मुझे ऐसा लग रहा है 28 हिट होते ही ना all of the sudden I become this heel पगलू, और अब मुझे किसी भी आउटफिट के साथ ना ऐसा लगता है कि heels ही पहनना है। I love wearing heels, okay? I love the way heels look, but I've been a sneaker girly all my life, so मुझे comfort की बहुत आदत लग चुकी है। If you buy like cheap heels, मतलब सस्ती होती है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वैरायटी मिल जाती है, but they don't have the support, the grip, और बिल्कुल भी सोल कंफर्टेबल नहीं होता है। Okay, let's be honest. मैंने ये दोनों हील्स ना स्टोर पे जाकर लिया था बिकॉज आई वॉज नॉट रियली श्योर अबाउट द साइज, बट दे आर अवेलेबल ऑन मिंत्रा। लेट मी शो यू दिस वन फर्स्ट, बिकॉज जब मैं स्टोर पे गई थी ना आई वॉन्टेड अ नाइस ब्लैक हील्स एंड दिस इज व्हाट द हील लुक्स लाइक। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है बट दे लुक सो सेक्सी व्हेन यू वेयर इट। इट हैज़ स्ट्रिंगी स्ट्रैप्स इन द फ्रंट, इट हैज़ दिस एंकल सपोर्ट एंड दिस इज ऑल्सो नॉट टू टॉल। आई थिंक 1.5 या 2 इंच की हाइट है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पहनो ना पहनो पता ही नहीं लगता है 1.5-2 इंच में। वंस यू स्टार्ट वेयरिंग सच हील्स, अच्छी क्वालिटी की हील्स, और जो कि थोड़ी सी महंगी होती है, यू कैन नॉट स्विच टू सस्ते हील्स। मैं ये नहीं कह रही कि 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार की हील ही लोगे तभी आपको कंफर्ट फील होगा। देयर आर ब्रांड्स लाइक ज़ारा की हील्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत कंफर्टेबल है, बट हाँ आपको डिफरेंस फिर पता लगता है महंगी लेने के बाद कि ओ माय गॉड सस्ती तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। मेरे फुट में ना बहुत ज़्यादा नर्व दिखती है, बहुत मैनली से दिखते हैं, तो मेरे को अपने पैर ना इतने पसंद नहीं है, बट इसको पहनने के बाद ऐसे एकदम फेमिनिन और एकदम सेक्सी से लग रहे थे मुझे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे अपने पैर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, तो मुझे देखते ही पसंद आ गई। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन आई गॉट, दिस इज़ फॉर 10,000 रुपीज़। बट अगेन ऐसी सिंपल सी हील आप एक ही बार लोगे और आने वाले बहुत सारे सालों तक पहनोगे, बिकॉज आई हैव हील्स जो मैंने आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो मैंने अच्छी क्वालिटी की हील ली थी, मैंने ज़ारा से ली थी, तब उस टाइम पर 3,000 या 3,500 तक की ली थी, और 2-3 साल पहले ली थी, और मैं अभी तक भी उसे बहुत फ्रीक्वेंटली पहनती हूँ, विच इज़ दिस वन। तो अच्छी क्वालिटी की हील्स आपकी बहुत टाइम तक चलती है और बहुत अच्छे से चलती है और बहुत कंफर्टेबल फील होती है। लाइक एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा नहीं लगता कि ओ माय गॉड मेरा पैर टूट गया। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट वन लुक्स लाइक। लेने तो मैं सिर्फ एक ब्लैक हील गई थी, बट फिर मैंने वहाँ पर गलती कर दी एक और हील ट्राई करके, तब मुझे उसे भी खरीदना पड़ गया बिकॉज ये इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। इट्स अ शैम्पेन स्ट्रैपी हील्स एंड हील का साइज आप देखोगे ना, इट्स
बिट टॉल एंड इतनी लंबी हील ज़िंदगी में मैंने आज तक ओन नहीं करी है। दिस इज़ माई टॉलेस्ट हील टिल डेट। जब मैंने इसे देखा था ना, आई वॉज लाइक कि वाओ कितनी प्यारी लग रही है, बट आई वॉज लाइक कि ये तो पहन के मैं चल नहीं पाऊंगी, कहीं ऐसी ही पड़ी मिलूंगी। बट ऐसे ही फन के लिए ट्राई करते हैं बिकॉज बहुत प्यारी लग रही है। बट व्हेन आई वोर इट एंड आई वॉक्ड, आई वॉज लाइक ये हील कहाँ गई इतनी लंबी, बिकॉज दीज आर सो कंफर्टेबल। एक तो यहाँ पर आपको टोज के पास इतना ज़्यादा क्रिस क्रॉस में सपोर्ट मिलेगा, एंड देन इट हैज़ अ सपोर्ट, दिस इज़ द फ्रंट पार्ट, एंड देन इट हैज़ अ एंकल स्ट्रैप ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो पता ही नहीं लगता इतनी लंबी हील भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। एंड द सोल इज़ ऑफ कोर्स विदाउट अ डाउट चार्ल्स एंड कीथ के footwear are really good. Footwear and bag, both of these are very good quality. I think एक महीना भी नहीं हुआ है लिए हुए, एंड ये हील्स मैंने बहुत बार ऑलरेडी पहन लिया है। मैंने जीन्स के साथ पहन लिया है, ड्रेसेस के साथ पहन लिया है, इवन एथनिक वेयर के साथ भी पहन लिया है। वैसे तो शैम्पेन कलर है, बट इट प्रिटी मच लुक्स न्यूड ओनली, तो हर आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से चला जाता है। आई लव दीज। ये वाली भी मैंने 10,000 में ही ली है, बट हाँ अगेन वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली टाइप की हील्स ही है। एक बार ले लिया अच्छी क्वालिटी, मैं इसी को यूज करूंगी। सो ये थे Charles and Keith. Now I have a very last product which is a very last footwear. ये footwear is not anything new. ये मैंने last year लिया था, and last year से अब तक मैं इतना use कर चुकी हूँ इन्हें। So these are these brown PU leather boots. I think ये 1.5 इंची हील होगी, ज़्यादा नहीं है। So these are very comfortable. It has side zipper. It looks very nice. मतलब ड्रेसेस के साथ, स्कर्ट्स के साथ मैंने बहुत बार पहना है। आपने भी मुझे स्टाइलिंग वीडियोस में बहुत बार पहने हुए देखा होगा इन्हें, बिकॉज दे गो रियली वेल विद अ लॉट ऑफ माई आउटफिट्स। और बहुत ज़्यादा न्यूट्रल कलर है, ब्राउन कलर है, तो बहुत सारे कलर्स के आउटफिट के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। सो बिफोर गेटिंग दीज मैं स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का ये वाले बूट्स यूज़ कर रही थी। दीज आर फॉर 1000। जब मैंने लिया था 1000 के थे, अब मुझे पता नहीं कितने के होंगे। सो ये भी सही थे, बट these are not very comfortable. I would say the sole inside is not comfortable at all. But सस्ते थे तो मैंने सस्ते के चक्कर में ले लिया था, and they don't have any side zipper also, तो a lot of times पहनने उतारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। So I wanted to invest in a boots जो मैं एक बार ले लूँ ना, और एक बार लो और काम खत्म हो गया। बूट्स में तो बहुत ज़्यादा कलर वेराइटी आपको लेना भी नहीं पड़ता है। ऑल्सो इसका कलर ना एकदम डीप ब्राउन है, तो ब्लैक आउटफिट के साथ और ब्राउन के साथ सबके साथ बहुत अच्छे से चला जाता है। आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि ओ इसके साथ ब्लैक होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, सबके साथ बहुत अच्छे से चला जाता है। अभी भी देखोगे ना, ऐसा दूर से तो ऐसा ब्लैक ही लगता है, और पास से देखोगे तो पता लगेगा ओ इट्स अ वेरी डार्क डीप ब्राउन कलर। जब मैंने लिया था आई बॉट दीज फॉर 14,000 रुपीज़। दीज बूट्स वर एन इन्वेस्टमेंट फॉर श्योर। जब मैंने लिया था लास्ट ईयर, आई वाज लाइक दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, बट फिर मैंने सोचा अगर अच्छी क्वालिटी है और मैं बहुत बार यूज़ कर पा रही हूँ तो फिर आई थिंक दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट आई वुड से। बिकॉज वो स्ट्रीट स्टाइल स्टोर वाले ना, मैं स्टाइलिंग के लिए पहन लेती थी, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स बाहर पहनने के लिए ना मुझे सोचना पड़ता था, बिकॉज दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल एट ऑल। इसमें तो पॉइंटेड हील है ना एकदम, उसमें ब्लॉक हील्स थी, बट वो इससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे। इन्हें तो पहन के पता भी नहीं लगता है कि आपने हील्स पहना है। तो लॉजिकली अगर आप सोचोगे, सो सस्ते के चक्कर में मैं अपने पैसे वेस्ट कर रही थी। सो एक बार ले लो और काम खत्म हो जाता है। इतनी बार मैंने इसे पहन लिया है, बट दे लुक एज गुड एज न्यू। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने 1 साल से इनको रगड़ रही हूँ। एंड विद दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो ऑफ ऑल द थिंग्स जो मैंने पिछले 1 साल में खरीदी हैं। चाहे उनके प्राइस थोड़े ज़्यादा हैं, बट द quality is very much justified and they feel and look very chic and very premium. सारे products का link मैं description में add कर दूंगी. You guys can also check it out, and do not forget to like, comment, share and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Bye.